اور انہیں کس طرح ساری نجات دی تھی؟ اپنا لہو بہا کے اپنی بہنات سے تالی جاؤں اپنا لہو بہا کے انہیں کی کیتا ہے سانو موت تو چھڑا. ایک اور جگہ پرانے عہد نامے دے وچ ذکر ہے کہ لہو دی وجہ تو لوگ کی موت تو بچ گئے. کوئی دس سکتا ہے؟ جب موسیٰ نے نکالا تھا مصر سے لوگوں کو تو وہاں پہ لہو لگا دیا گیا تھا تاکہ وہ جو بنی اسرائیلی تھے ان کو بچایا جا سکے اور جو فرعون کے لوگ تھے وہ ہلاک کر دیے. آمین. اپنی بہن کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. یہ یقینی بات ہے کہ جب اسرائیلیوں کو ملک مصر سے نکالا جا رہا تھا تو خداوند نے ان کو تاکید کی تھی کہ لہو لگا دینا, اور اس سلسلہ سے میں جانوں گا. اور آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے کہ کیوں ایسا ضروری تھا کہ خدا نے کیا ہو. تو اگر کوئی میرے ساتھ بائبل میں سے پڑھ دے, اگر سسٹر جی آپ آگے ہی آ جائیں, آپ بائبل پڑھ سکیں اردو کی, تو آپ مائک میں اگر پڑھ دیں تو بڑا بہتر ہو جائے گا. خروج کی کتاب اس کا ہم 11واں باب اس کی 4تھی آیت سے آگے پڑھیں گے. میں آپ کو بتا دوں گا کب آپ اس کو خروج اس کا 11واں باب, بک آف ایکسڈس چیپٹر 11 ورس 4 to 8 we are going to read this. 4 سے 8. اور موسیٰ نے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا اور ملک مصر کے سب پہلوٹے فرعون جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے پہلوٹے تک اور سب چوپایوں کے پہلوٹے مر جائیں گے. اور سارے ملک مصر میں ایسا بڑا ماتم ہوگا جیسا نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ پھر کبھی ہوگا. لیکن اسرائیلیوں میں سے کسی پر خواہ انسان ہو خواہ حیوان ایک کتا بھی نہیں بھونکے گا, تاکہ تم جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق رکھتا ہے. لیکن اسرائیلیوں میں سے کسی پر خواہ انسان ہو خواہ حیوان ایک کتا بھی نہیں بھونکے گا, تاکہ تم جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے. کیا کرو, جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق رکھتا ہے. اور تیرے یہ سب نوکر میرے پاس آ کر میرے آگے سرنگو ہوں گے اور کہیں گے کہ تو بھی نکل اور تیرے سب پیروں بھی نکلیں. ٹھیک ہے, ہم اگلی بات پڑھیں گے, اسی آگے پڑھیں گے اس میں خروج 12واں باب اور 5واں آیت سے. تمہارا برا بے عیب اور یکساں نر ہو اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے, اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا. اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دے. اس کے بعد اس کی آگے 12ویں آیت سے پڑھیں. اس لیے میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا. میں خداوند ہوں. اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا, اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں. آمین.
खुदावन के पढ़े परसों ने जाना खुदावन की बरकत जिस वक्त इधर ही बैठ जाए जिसमें जिसको जरूरत पड़े। हमने खुदावन के जिंदा कलाम में से पढ़ा कि जब खुदावंद मिस्रियों को एक आखिरी जो है चेतावनी देने वाला था और एक आखिरी आफत उनके ऊपर आने वाली थी, तो वो आफत क्या थी कि मिस्रियों के पहलौठे मारे जाने थे, उनके पहलौठे और उनके जानवरों के पहलौठे। और खुदावंद ने क्या मूसा को कहा कि तू क्या करना कि खून जो है वो चौखटों पर लगाना, खाली चौखट पर भी नहीं, साइडों पर भी लगाना दरवाजों के, और उसकी वजह से मैं उस घर के और घर के रहने वालों को छोड़ दूंगा। आखिरी वर्ष में हमने पढ़ा है कि कोई आप अगर इंग्लिश में पढ़े तो करते हैं, then they are to take some of the blood and put it on the sides and the top of the door frames of their house। और अगली आयत में 13 आयत में लिखा है the blood will be a sign for you। क्या होगा? खून तुम्हारे लिए और घर वालों के लिए एक निशान होगा। I will pass over you। मैं वहां से जब गुजरूंगा, no destructive plague will touch you when I strike Egypt। You know, अगर हम इसको सोचें, खुदा वैसे भी बचा सकता था मिस्र, खुदा वैसे भी पहलौठे मार सकता था। 9 आफते उसने बगैर कोई खून लगाए, लहू लगाए, उसने वो आफते मिस्र के ऊपर नाजिल की। तो क्या वो आखिरी आफत बगैर खून लगाए नाजिल नहीं था कर सकता? कर सकता था कि नहीं कर सकता था? कर सकता था कि नहीं कर सकता था? लेकिन खुदावंद ने उस वक्त ये एक निशान ठहराया कि लोग जाने कि जो निजात है, जब हम पुराने नामे में कहते हैं कि खून बहाए बगैर गुनाहों की माफी नहीं है। और ना सिर्फ ये, बल्कि खून एक खास ताकत रखता है, खून के अंदर जान पाई जाती है। और जब वो जान जो है वो दरवाजों के ऊपर लगा दी गई, पुराने नामे में लिखा है कि खून को ना खाना। क्यों? क्योंकि खून में क्या होती है? जान होती है। देयर इज लाइफ इन द ब्लड। किसी जानवर का खून ना खाना। क्यों? क्योंकि देयर इज लाइफ इन द ब्लड। और जब उस खून को चौखटों के ऊपर लगा दिया गया, तो खुदावंद ने उस घर को छोड़ दिया। हालेलुया। बिकॉज खुदावंद ने देखा कि इस घर के अंदर जिंदगी है। कई बार जब हम दुनिया में होते हैं तो लोग हमें अजीब लोग जाते होंगे कि यार ये यार यीशु दे लहू पुकारते रहते हैं। अगर कॉमन सेंस से देखें तो इट डजंट मेक सेंस, लेकिन अगर रूहानी तौर पर देखें ना तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि लहू में जान पाई जाती है। पहले दिन से खुदा ने कह दिया था कि लहू ना खाना, कोई भी जानवर खा लेना, उसका लहू ना खाना। इवन इन द न्यू टेस्टामेंट लिखे है, उसके अंदर भी पौलुस कहता है कि तुम जानवर सारे खा सकते हो, लेकिन गला घोंटे हुए जानवरों को ना खाना जिनके अंदर खून हो। डोंट ईट ब्लड, क्योंकि उसके अंदर जान होती है, उसको मत खाना। इट इज बीन सेड। और उस निशान को खुदावंद ने वापस जाहिर किया। और ना सिर्फ ये, जब हमने पहली वर्ष में पढ़ा 11वीं आयत में, हम उसके अंदर देखेंगे तो उसके अंदर लिखा है Then you will know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel। इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं, तब तुम जानोगे कि खुदा मिस्रियों और इस्राएलियों में फर्क करता है। There is a difference between you as Christians and the people of this world। दुनिया के लोगों में और मसीहों में एक फर्क है, और वो फर्क क्या है? कि हम मानते हैं कि मसीह ने अपना लहू हमारे लिए, हम मानते हैं कि मसीह का लहू हमारे जिस्मों की चौखटों के ऊपर लगा। Thank you, Jesus। और जब वो लहू हमारे जिस्मों की चौखटों के ऊपर लगा है और हम उसके ऊपर ईमान लाते हैं, तो मौत का हमारे पर कोई इख्तियार नहीं। सारे मिलकर बोलेंगे, मौत का हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं। यीशु के लहू के वसीला से हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं। दुनिया के शुरू से खुदावंद ने हमारे लिए ये प्लान कर दिया था। जब शैतान ने प्लान किया था ना कि वो आदम और हवा को धोखा देगा और डिसीव करेगा और उनको गुनाह की तरफ धकेल देगा, तो खुदा है, खुदा ने सब कुछ बनाया है। खुदा ने उस प्लान का तोड़ उस वक्त से ही निकाल दिया था जो आज हमारी आंखों के सामने खुलेगा। जब आदम और हवा को धोखा मिला था तो शैतान ने कौन सा रूप धारा था? कोई बता सकता है? कौन सा रूप धारा था?
सारे एग्री करते हैं सांप का रूप धारा था। अब सांप के अंदर एक खास बात पाई जाती है, सांप जिसको डस ले क्या होता है? हाँ जी, मर जाता है। क्यों मौत होती है? पॉइजन, जहर की वजह से मौत होती है। सांप ने आदम और हवा को किस तरह डसा कि उनके अंदर शक का बीज बोया। शक के बीज से उसने उनको गुनाह की तरफ धकेला, गुनाह के जहर की तरफ ले गया। और खुदावंद का क्या कलाम क्या कहता है? गुनाह की सजा क्या है? गुनाह की सजा क्या है? मौत है गुनाह की सजा। सांप का जो डसा जाता है वो मर जाता है, अगर उसको तरीके से दवाई टाइम पर ना पहुंचे तो वो मर जाता है। और इसी तरह गुनाह में जो बंदा होता है उसका भी क्या होता है? अंजाम मौत होता है। अब ये देखें, जब सांप किसी को काटता है तो उसको क्या किया जाता है? किस तरह उसकी ट्रीटमेंट की जाती है? जहर कटाया जाता है, पहले उसका ब्लड रोका जाता है वहां पे। ओके। और कोई? उसको एंटीविनोम इस मॉडल में फिल्मा बहुत देखी है, खास करके स्पेरे अली के जहर कटिया जाता है। इन्हें वो फिल्मा देखी है जिन्हें मुंह बंद के ना जहर कट। सिस्टर क्योंकि मेडिसिन से ताल्लुक रखती है, उन्होंने सही बात की है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जब दुनिया में किसी को भी सांप काटा जाता है ना, तो जो जहर होता है ना उसका तोड़ एंटी वेनम होता है। जो वेनम होता है उसका तोड़ एंटी वेनम होता है। एंटी वेनम उसके खून में इंजेक्ट किया जाता है। जहर का तोड़ जहर ही होता है, लेकिन वो एंटी वेनम बनता कैसे है हम उसको आज पढ़ेंगे और देखेंगे। तो सिस्टर जो एंटी वेनम दिया जाता है बंदे को, उससे इंसान बच जाता है। ठीक है, वक्त पर उसको एंटी वेनम मिलना चाहिए। अगर ज्यादा देर हो जाए तो फिर भी नहीं बचता। ठीक है, हाँ। एंटी वेनम बनता कैसे? मेडिसिन से। एक मेडिसिन होती है, मतलब अभी तो मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट वो भी एक क्वांटिटी में दी जाती, मतलब 0.5 to 10 ml। चलो मैं आपको सिखाता हूँ, आज हम सारे मिलके सीखते हैं। मैंने भी इस बात को सीखा, ये नहीं था कि मैं जी पैदा हुआ तो मेरे पता सी कि एंटी वेनम किस तरह बनता है। मैंने भी सीखा और मैं आप लोगों को भी ये चीज़ सिखाता हूँ। एंटी वेनम बनाने का तरीका क्या होता है? पहले लोग बनाते थे एंटी वेनम, दूसरे जानवरों में घोड़ों से बनाते थे, लेकिन उसका हमेशा ना साइड इफेक्ट रहता है। दुनिया का बेस्ट एंटी वेनम पता किस तरह बनता है? बर्रे के खून से, हालेलुया। भेड़ के खून से दुनिया का बेस्ट एंटी वेनम बनता है। और उसको बनाने का तरीका पता क्या होता है? जो भेड़ होती है ना, उसके अंदर आप एक मखसूस सांप के जहर को लेते हैं और आप उसके खून के अंदर उस सांप के जहर को डालते हैं। और जब उसके खून के अंदर उस सांप के जहर को आप डालते हैं तो 3 दिन तक वो भेड़ ना बीमार हो जाती है, काफी कमजोर से हो जाती है। लेकिन वो चौथे दिन उसका ना अंदर एंटीबॉडीज बिल्ड होना शुरू हो जाती है। उसके खून के अंदर खुद ऐसी चीजें मौजूद बनना शुरू हो जाती हैं जो उस जहर का तोड़ बनना शुरू हो जाता है। और जब वो जहर का तोड़ बनना शुरू हो जाता है और भेड़ बिल्कुल ठीक हो जाती है, तो उसके खून को लेके वो उसके अंदर से उन एंटीबॉडीज को ना प्यूरिफाई कर लेते हैं और उसको वो भर लेते हैं अपने पास। और फिर जब किसी को भी सांप काटता है ना आगे, तो वो एंटीबॉडीज निकाल के उसको दी जाती है। इंजेक्ट कर देते हैं। दिस इज हाउ एन एंटी वेनम इज मेड। अजीजों, जब मैं ये सोच रहा था ना, तो मेरी आंखों से आंसू जा रहे थे। और जब ये खुदावंद ने अपना रेवलेशन मेरे पे खोला और मैंने बाद में देखा कि कुछ और लोगों ने भी इसके ऊपर तहकीक की हुई कि यीशु मसीह को नए अहदनामे में अगर हम बार बार देखें क्या कहा जाता है? बर्रा। यूहन्ना की किताब उसके पहले बाब में देखें तो जब जो है यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए गया, यूहन्ना कोई साइंसदान नहीं था, या उसको पता नहीं था कि जी बर्रे के अंदर जो है वो तोड़ है सांप के जहर का। उसने कहा देखो ये खुदा का बर्रा जो क्या करता है, जहान का गुनाह उठाए लिए जाता है। देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठाए लिए जाता है। फिर दूसरी बार उसी सेम बाब के अंदर लिखा हुआ है, वो अपने दोस्तों के साथ एक चुबारे में बैठा हुआ था, एक चौक में बैठा हुआ था, और वहां पर उसने यीशु को चलते हुए देखा। फिर उसने बोला देखो ये खुदा का क्या
बर्रा जो जहान जहान का के गुनाह उठा लिया जाता है। यार अगर कोई अपना खुदा को बर्रा कहे, यार बर्रा क्यों मसीह को आप क्यों नहीं कह सकते, बास क्यों नहीं कह सकते, बड़ी चीज क्यों नहीं कह सकते, बर्रा ही उन्होंने क्यों किया, बर्रा ही उन्होंने क्यों किया, क्यों कि होली स्पिरिट की ताकत देना, ही न्यू कि बर्रे के पास वो ताकत मौजूद है जो उस जहर का तोड़ निकाल सके जो सांप की वजह से इब्ने आदम ने जिंदगी में आया। उसको पता था, ही न्यू, क्योंकि वो खुदावंद की कुदरत से, पाक की हदायत से वो जानता था कि ये खुदा का बर्रा। हालेलुया। हमसे कोई पूछे यार तुसी अपना खुदा को बर्रा क्यों कहते, तो ऐसी परेशान हो जाते, यार गल तो सही कह रहे हैं, पर ये वजह है कि हम खुदा को, यीशु मसीह को खुदा का बर्रा, हालेलुया। क्योंकि उसके खून बहाने से जब उसने हमारा गुनाह अपने ऊपर लिया, हमारा गुनाह अपने ऊपर लेके वो मरा, तो उसके खून में वो कुदरत थी हालेलुया। जो हमारे गुनाहों को माफ कर सकती Thank you, Jesus. और आज वो ही गुनाहों से आजाद हो सकते हैं जो यीशु के लहू के ऊपर ईमान रखते हैं, जो यीशु के लहू को अपनी चौखटों के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर, अपनी साइडों के ऊपर, अपनी हर एक चीज के ऊपर लगा के रखते हैं, उनका शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनको शैतान नहीं नुकसान दे सकता, कोई वबा तेरे खेमे के नजदीक ना पहुंचेगी, कोई वबा तुम्हें नुकसान नहीं दे सकता, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने फर्क कर दिया है, हालेलुया। खुदावंद ने बता दिया है कि दुनिया एक तरफ, मेरे लोग एक तरफ, क्योंकि वो मेरे खून की बाड़ा के नीचे है। जब हम कहते हैं ना यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। हालेलुया। यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं, किसी बछड़े का नहीं, बल्कि बेऐब पाक खून है जिसमें वो कुदरत और वो ताकत है जो उस सांप के जो अज़ल से था, उस बड़े अजदहा के जहर से हमें बचा सकता है। वो अजदहा जिसने गुनाह आदम और हवा में बीज दिया, खुदा ने उधर इसका तोड़ निकाल दिया। उसने कहा, तू सांप बना, देख मैं बर्रा बन के जो है Thank तेरे you, जहर का तोड़ Jesus. निकाल दूंगा, तू मेरे लोगों को हालेलुया। किधर से बरगला सकता है। अजीजों, गहरी बात है और समझने की बात है कि यीशु के लहू की इंपॉर्टेंस क्यों है। Why is it important that we put the blood of Jesus on our foreheads? Why is it important that we put the blood of Jesus Thank you, on our lives, our work, our family? जब खुदा ने मूसा से कहा तो उसने ये नहीं था कहा सिर्फ चौखट के ऊपर लगा देना खा रहे, उसने कहा साइडों साइडों और हर जगह पे खुदाओं के बरे को लगा। हमें सिर्फ अपने माथों पर नहीं लगाना, अपनी जिंदगी की हर एक चीज पे यीशु के लहू को लगाना है ताकि शैतान हम पर कोई अटैक ना करे। जरूरी बात, समझने की बात, देखने की बात, खून बहाए बगैर गुनाह का कफारा नहीं, और उसने अपना पवित्र खून आपके और मेरे लिए बहा दिया ताकि उसके मार खाने से, उसके ईमान, उस पर ईमान लाने से हम अपने गुनाहों से निजात हासिल करें। अगर आज इस कलाम के वसीला से आपने बरकत, और अगर आप चाहते हैं कि कोई वबा आपके खेमा तक ना पहुंचे, कोई वबा आपको नुकसान ना लगे, तो ये वक्त है कि हम अपने आप को खुदा की हुजूरी में सरेंडर करें। ये वक्त है, अगर आप चाहते हैं एक बार फिर से यीशु के लहू में नया होना, अगर आप चाहते हैं एक बार फिर से खुदा के रूह में नया होना, तो आप आगे आ सकते हैं, आप घुटने टेक कर सकते हैं, हमारी प्रेयर टीम आपके साथ प्रेयर करेगी और हम मांगेंगे कि खुदावंद एक बार फिर से आपके जिस्मों के ऊपर, आपकी जानों के ऊपर अपने लहू को लगाए ताकि कोई शैतानी ताकत आपके ऊपर हमला ना कर सके, कोई खौफ आपको मसीह से दूर ना लेके जा सके, कोई गुनाह आपको हमेशा की जिंदगी से दूर ना लेके जा सके, क्योंकि गुनाह और मौत का हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं रहता जब हम यीशु के लहू से धुल जाते हैं। उसके लहू में ये कुदरत और ये ताकत पाई जाती है। हालेलुया।